آج ہم کچھ وقت اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان یہ مسئلہ ہے کے تحت کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ایمان کی راہ پر چلتے ہیں تو ہمیں بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا مجھے خدا کی مرضی کی پیروی کرنی چاہیے یا میں خدا سے اپنی مرضی کی پیروی کرواؤں؟ دوسرے الفاظ میں، کیا مجھے خدا سے اپنی پیروی کروانی چاہیے؟ ہم اکثر خود کو اس دوراہے پر پاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم فہم و فراست سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا کی مرضی کی پیروی کرنی چاہیے، تاہم ہماری روزمرہ زندگیوں میں بے شمار پریشانیوں اور تنازعات کے درمیان ہم اکثر تعجب کرتے ہیں کہ کیا مجھے خدا کی مرضی کی پیروی کرنی چاہیے یا خدا میری مرضی کے مطابق چلیں؟ آپ سب یہ پریشان کن ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس حقیقت کے باوجود کہ ہمارے لیے اپنی ایمان کی زندگی میں خدا کے بارے میں سیکھنا اور ان کی تعلیم و مرضی کی پیروی کرنا فطری بات ہے، ہم بعض اوقات خدا کی مرضی کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے اور خدا کو اپنی مرضی کی پیروی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کتاب مقدس میں بعض اوقات اس مسئلے کی درجہ بندی بچگانہ ایمان اور بالغ ایمان، یعنی دوسرے الفاظ میں ایک بالغ شخص کے ایمان کے طور پر کی گئی ہے۔ پہلے آئیں ہم پہلے کرنتھیوں کی کتاب باب 13 کھولتے ہیں۔ باب 13 آیت 11 سے دیکھتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی مانند ہیں؟ اس وقت جب ہم جوان اور نابالغ ہوتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارا ایمان ابھی تک خدا کی مرضی کو درست طور پر سمجھنے اور سچائی کو مکمل طور پر سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، اور اگرچہ میں نے یکساں وضاحت سنی، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کا سا ایمان تھا۔ لیکن جب جوان ہوا تو کیا ہوا؟ تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ ہمیں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں انہیں ترک کر دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے آج کے وعظ کا عنوان یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ ہمیں بچپن کی باتیں ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ہر وقت ان کی مرضی کی پیروی کریں۔ اگر ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ وہ روتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ مختلف کاموں میں مشغول رہتے ہیں جو ان کے والدین کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ جب تک ان کی خواہشات پوری نہیں ہو جاتی وہ چلاتے اور طیش میں رہتے ہیں۔ ہمارے ایمان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ہم بچوں کی طرح بولتے تھے، بچوں کی سی طبیعت تھی اور بچوں کی سی سمجھ تھی۔ تاہم جب ہم نے بالغ ایمان رکھا تو ہم نے بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ ہمیں بچپن کی باتیں ترک کرنی ہیں۔ ہمیں کیوں ان باتوں کو ترک کرنا چاہیے؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے؟ مہربانی سے سب کچھ میری مرضی کے مطابق کرو، مہربانی سے میری مرضی کی پیروی کرو۔ یہ بچپن کی باتیں ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خیالات، الفاظ اور طرز عمل ہیں جن کا مظاہرہ ایک بچہ کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جب میں جوان ہوا تو میں نے بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ ایک بالغ شخص یہ نہیں کہتا کہ میری مرضی کی پیروی کرو، بلکہ وہ کس کی مرضی پر چلتا ہے؟ مصلوبیت سے ایک دن پہلے یسوع جانتے تھے کہ وہ اگلے دن مصلوب ہوں گے، مگر جب انہوں نے گتسمنی کے باغ میں ساری رات دعا کی تو انہوں نے کہا، اے باپ، اگر آپ چاہیں تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لیں، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو۔ ان کے الفاظ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مہربانی سے میری مرضی کی پیروی کریں، بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ باپ کی مرضی کی پیروی کریں گے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں گا؟ کتاب مقدس میں اسے فرما برداری کہا گیا ہے۔ آپ سب
جیسے ہی ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم فطرت میں خدا کی بے شمار تخلیقات دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ درخت اپنی قدر خود جانتا ہے، یہ اسے دی گئی جگہ سے مطمئن ہوتا ہے اور یہ پوچھتے ہوئے شکایت نہیں کرتا کہ تم نے مجھے یہاں کیوں لگایا ہے یا تم نے مجھے یہاں کیوں منتقل کیا ہے۔ اس کی بجائے ایک درخت خوبصورتی سے اس جگہ کے مطابق ڈھل جاتا ہے جہاں خدا نے اسے بویا اور لگایا ہو۔ آسان الفاظ میں تمام فطرت خدا کی مرضی کی پیروی کرتی ہے۔ فطرت کا ایک بھی پہلو ایسا نہیں جو یہ کہے کہ حالات کو میری خواہشات کے مطابق بدلیں۔ پہاڑ، دریا اور سمندر سب اپنے کردار سے مطمئن ہیں اور اپنے مقام پر قائم ہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ وہ ایک بار بھی نہیں پوچھیں گے کہ میں سمندر کیوں بنا ہوں، یا درخت کے طور پر میں اس دیہات میں کیوں لگایا گیا ہوں جبکہ میں شہر میں رہنا چاہتا ہوں۔ واقعی فطرت کا کوئی بھی حصہ نافرمانی یا خدا کی مرضی کے خلاف بغاوت نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سب کو ایک خاص عبارت بتاؤں گا تاکہ ہم سب اس پر اکٹھے غور کریں۔ ایک درخت جانتا ہے کہ وہ اپنے کردار سے کیسے مطمئن رہے۔ یہ درخت ہونے پر ہرگز شکایت نہیں کرتا، یہ سوال نہیں کرتا کہ مجھے یہاں کیوں لگایا گیا ہے اور وہاں کیوں نہیں۔ لالچ حکمت کو دھندلا دیتا ہے جو نافرمانی، شکایات اور بڑبڑاہٹ کو لے جاتا ہے۔ بالآخر یہ ہمیں شکر گزاری کرنا بھلا دیتا ہے۔ میں نے ہمارے لیے یہ بامانی پیغام تلاش کیا تاکہ ہم اکٹھے اس پر غور کر سکیں۔ ایک درخت جانتا ہے کہ کیسے مطمئن رہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد فطری چیزوں پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ کو جانتے اور مطمئن رہتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ مجھے پہاڑ کیوں بنایا گیا جبکہ میں میدان بننا چاہتا ہوں، یا میں سمندر کی طرح کیوں پیدا کیا گیا جبکہ میں نے کھیت بننا چاہا۔ کوئی تخلیق ایسی نہیں جو خدا کے کام کی پیروی نہ کرتی ہو۔ تاہم یہ بنی نوع انسان ہیں جو کہ مسئلہ ہیں۔ یہ خدا کی مرضی کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے تابع ہونے میں ناکام رہتے ہیں، یہ سوال کرتے ہوئے کہ آپ نے کیوں مجھے اس عہدے پر فائز کیا ہے، آپ نے کسی اور کو ایسا اعلیٰ مقام کیوں بخشا ہے۔ آپ سب، یہ مسئلہ ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ہم ہر چیز کا مطالبہ کرتے تھے، تاہم کیا آسمان کی ابدی بادشاہی قریب نہیں آ رہی ہے؟ جیسے جیسے آسمان کی بادشاہی قریب آ رہی ہے، ہمیں بچپن کی باتیں ترک کر دینی چاہیے اور بالغ ایمان رکھنا چاہیے۔ اب سے یہ کہنے کے بجائے کہ مہربان سے سب کچھ میری مرضی کے مطابق کریں، ہمیں پوچھنا چاہیے باپ کی مرضی کیا ہے، ماں کی مرضی کیا ہے۔ میں آپ کے راستے اور آپ کے طریقے کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں ایک درخت ہوں تو میں درخت کے فرض سے وفادار رہوں گا۔ اگر میں سمندر ہوں تو میں سمندر کے فرض سے وفادار رہوں گا۔ اگر میں پہاڑ ہوں تو میں پہاڑ کے فرض سے وفادار رہوں گا۔ اس ایمان کے ساتھ ہمارے تمام نبیوں اور ہمارے پیارے اراکین کو اعلان کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اس راہ کے لیے وقف کروں گا جس پر ہمارے باپ اور ماں اپنی خلقت کی دور اندیشی کے مطابق ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب فرمانبرداری کی بات آتی ہے تو اس کا اطلاق نبیوں اور مقدسین پر مختلف انداز سے نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اس راہ پر چلنا چاہیے جس پر باپ اور ماں ہمیں لے جاتے ہیں، جیسا کہ یسوع نے نمونہ دیا تھا۔ انہوں نے دعا کی تھی، میری مرضی نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس دعا پر غور کریں جو انہوں نے یوں گزرانی تھی۔ آئیں مکاشفہ باب 14 آیت 4 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 14 آیت 4۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ جب یہ کہتی ہے جہاں کہیں، تو یہ ایک خاص ماحول تک محدود نہیں ہے۔
ये बहुत ही महदूद जगह हो सकती है या बहुत वसी और रेस जगह, जहां कहीं के लिए कोई मुकर्रर तारीख नहीं है। हमें बख्शा गया माहौल चाहे जैसा भी हो, हमें इसमें ढलने और ये कहने के काबिल होना चाहिए कि ये बाप की मर्जी और माँ की मर्जी के मुताबिक है। क्या हमें ईमान की ऐसी दुनिया का तजुर्बा नहीं करना चाहिए? फिलहाल सारी दुनिया में खुशखबरी बतदरीज तकमील की तरफ बढ़ रही है। तकमील के हर मरहले में बालिग ईमान वालों और बाप की मर्जी और माँ की मर्जी पर अमल करने वालों की जरूरत है। एक छोटा बच्चा हमेशा मुतालबा करता है कि जो मैं चाहता हूं वो करो। ताहम बालिगों के बारे में क्या ख्याल है? वो ऐलान करते हैं, मैं बाप की मर्जी और माँ की मर्जी की पैरवी करूंगा। मुकाशफा 14 बाब में यूहन्ना रसूल की रोया उन लोगों की मंजरकशी करती है जो बचाए गए हैं। जहां कहीं उनकी रहनुमाई की जाती है, वो क्या करते हैं? वो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। हत्ता कि एक शख्स भी ऐसा नहीं जो ये कहे, मेहरबान से मेरी मर्जी की मुआफी करो। किताब मुक़द्दस का मुताला करते वक्त हमें इस पहलू पर तवज्जो देनी चाहिए। जब हमें बालिग ईमान हो तो हमारी दुआओं का मरकज वो चीजें नहीं होती जिन्हें हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करना चाहते हैं। इसकी बजाय हम पूछते हैं, आपकी मर्जी क्या है? आप हमें कहां ले जाना चाहते हैं? आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? आप हमसे क्या चाहते हैं कि किस किस्म के लोग बने? जब हमारा ऐसा ईमान हो जो हमसे आसमानी बाप और आसमानी माँ की मर्जी की पैरवी करवाए, तो क्या निजात की तकमील और आसमान की अब्दी बादशाही का लम्हा ज्यादा जल्दी नहीं आएगा? बचगाना ईमान वाले लोग जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुसलसल हर चीज की भीख मांगते हैं, वो हमेशा शिकायत करते और बुड़बुड़ाते हैं। ऐसा ईमान उन्हें वो कामयाबियत हासिल करने से रोकता है जो बाप और माँ चाहते हैं। बेशक सच्चाई को अच्छी तरह ना जानने की वजह से बच्चों का रवैया काबिल फहम हो सकता है। हम ये सोचते हुए समझ सकते हैं चूंकि वो नए अराकीन हैं, उन्होंने अभी ज्यादा कुछ नहीं सीखा है। ताहम अगर किसी शख्स ने बहुत कुछ सीखा है और तवील अरसा से सच्चाई में है, फिर भी वो बच्चों की तरह काम करे, तो क्या ये नामुनासिब नहीं है? ये लिखा है कि जब मैं जवान हुआ तो मैंने बचपन की बातें तर्क कर दी। ये किताब मुक़द्दस की तालीम है। जब हम बच्चे हों तो ये काबिल कबूल है, लेकिन जब हम बालिग हो जाएं तो हमें बचपन की बातों को तर्क करना चाहिए और इसकी बजाय सोचना चाहिए कि बाप और माँ की क्या मर्जी है, खुदा हमसे क्या चाहते हैं कि किस किस्म के लोग बने, खुदा इस लम्हे पर हमसे क्या चाहते हैं। इस तरह सयून के फर्जंदों को खुदा की मर्जी को दुरुस्त तौर पर समझना और इस पर अमल करना चाहिए। सही। आए दूसरे कुरिन्थियों बाब 10 आयत 4 से देखते हैं। बाब 10 आयत 4, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके किसका? मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमाबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। हमें अपने तमाम ख्यालात को कैद करना और फरमाबरदारी के साथ खुदा की मर्जी की पैरवी करनी चाहिए। सिर्फ जब हम इस म्यार को पूरा करें तो खुदा तमाम दुनिया की अदालत करेंगे और उन्हें सजा देंगे जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम सब जल्द अज जल्द आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं। क्या हम नहीं जाना चाहते? हमें आसमान की बादशाही की उम्मीद है। अगर ऐसा है तो हमें बचकाना ईमान के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसे तर्क कर देना चाहिए। मेहरबानी से उन लोगों के साथ फहमो फरासत का मुजाहिरा करें जिन्होंने अभी सच्चाई को कबूल किया है, चाहे वो बच्चों की तरह पेश आएं।
ताहम अगर आप बालिग फर्द के तौर पर सफ़े अव्वल के ओहदे पर हैं जिन्हें अरकान के लिए नमूना कायम करना चाहिए, तो आपको बचपन की बातें तर्क कर देनी चाहिए। मेहरबानी से दरख्तों के बारे में सोचें। दरख्त जानता है कि उसका काम क्या है और वो उसी के मुताबिक अपने किरदार से मुतमईन होता है। दरख्त अपनी जिंदगी में मुतमईन होता है और सूरज की रोशनी की हरारत से, जो कि खुदा का फजल है, बारिश को जज़ब करते हुए, ताज़ा हवा में सांस लेते हुए और तमाम जानदारों की खुशी की गीत गाते हुए खुशी पाता है। इसकी वजह यह है कि ये जिंदगी में अपने मुनासिब मुकाम को समझता है। ये अच्छी तरह जानता है कि उसके रहने के लिए वही जगह अच्छी है जहां पर खुदा ने उसे लगाया है। एक लम्हे के लिए फितरत और तमाम तख्लीक का मुशाहिदा करें। खुदा ने आसमान, जमीन और जो कुछ इनमें है सबको पैदा किया। हर पहाड़ फखर से अपना वकार कायम रखता है और हर दरिया अपने मकसद से बखूबी वाकिफ है। क्या खेत में खिलने वाले बेनाम फूल कभी ये बुड़बुड़ाते हैं कि ऐ खुदा, आपने क्यों मुझे गुलाब या दूसरे फूलों की तरह पैदा नहीं किया जिन्हें लोग पसंद करते हैं? मुझे क्यों यहाँ जंगल में नाकाबिल जिक्र नशोनुमा पाना है? क्या जंगली फूल खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं? नहीं, वो जहां हैं वहीं मुतमईन हैं। मैं वाकई खुदा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये जिंदगी बख्शी है। वो जहां भी होते हैं मुस्तदे से अपना किरदार अदा करते हैं। अगर से उनके तमाम फर्जंद मुकम्मल तौर पर बाप और माँ की मर्जी की पैरवी करें तो खुशखबरी मुकम्मल होगी। खुशखबरी तब मुकम्मल होती है जब ऐसी सूरत हाल रूनुमा हो जो खुदा चाहते हैं। अगर हम आसमान की बादशाह में जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक हमें वहां जाने का तरीका नहीं मालूम और अपने मौजूदा हैसियत से मुतमईन नहीं है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम खुदा के कारकुनान हैं। इस वजह से आज के वाज का उन्वान क्या है? ये मसला है। जब हम बचपन की तमाम बातें तर्क कर दें तो खुदा हमसे खुश होंगे और एशिया में खुशखबरी का दरवाजा वसी खोलेंगे। वो शुमाली अमेरिका और वसी अमेरिका के साथ साथ जनूबी अमेरिका में भी खुशखबरी का दरवाजा खोलेंगे। खुदा अफ्रीका में खुशखबरी का दरवाजा खोलेंगे, हत्ता कि यूरोप में भी, यानी दुनिया के हर खिते में। सारी दुनिया को इस तैयारी की जरूरत है। बचकाना ईमान को बालिग ईमान में बदलना है। मुकाशफा बाब 14 और दूसरा कुरिन्थियों बाब 10 आयत 6 की तालीमात के मुताबिक जो हमने अभी पढ़ी हैं, अगर हम बालिग ईमान रखें और हमारी फरमाबरदारी कामिल हो जाए तो सिर्फ तभी खुदा ये ऐलान कर सकेंगे कि खुशखबरी का काम मुकम्मल हो चुका है और बदकारों को सजा दो। दूसरे अल्फाज में खुदा के पास बदकारों की अदालत करने की वजह होगी। अगर खुदा अभी अदालत करें तो उनके फर्जंद निजात नहीं पा सकते। इसलिए खुदा क्या करते हैं? वो हमें एक और साल बख्शते हैं और हमारी निगरानी करते हैं। क्या उन्होंने बालिग ईमान पा लिया है या वो अब तक अपनी ख्वाहिशात की तकमील पर इसरार कर रहे हैं? हमें पुरज़्म होना और कहना चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर बाप और माँ की मर्जी की पैरवी और तामील करेंगे। इस तरह हमें अपने ईमान में एक खूबसूरत तब्दीली लानी चाहिए। काबली मक्खी लार्वे की सूरत से शानदार चमकीले शिफाफ परों और नाजुक हमवार दुम की सूरत में बदलने के लिए तब्दीली के अमल से गुजरती है। उसके पास बड़ी घंटीनुमा आंखें होने के लिए क्या जरूरी है? तब्दीली जरूरी है। सही उनके तमाम फर्जंद पलक झपकते ही नागुज़ीर तौर पर ऐसी तब्दीली का तजुर्बा करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस मसले को हल करना चाहिए। क्या हमारे पास बचकाना ईमान है या बालिग ईमान? क्या हम महज ये मुतालबा करते हैं कि हर चीज मेरे मुताबिक बनाई जाए, या हमने बाप और माँ की मर्जी पर चलने का अज़्म कर लिया है
अगर फर्माबरदारी ना हो तो खुदा बदकारों को सजा देने और उनकी अदालत करने का जवाब तलाश नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? आदिल और रास मुंसिफ के तौर पर खुदा ना रासों का फैसला करना चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनके फर्जंद अभी तक मुकम्मल तौर पर बालिग नहीं हुए हैं। बस अगर वो फौरन अदालत करते तो उनके प्यारे फर्जंद भी नागुज़ीर तौर पर रूहानी नुकसान उठाते। इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं। अगर हम आसमान की भाषा में जाना चाहते हैं तो हमारा ईमान बालिग होना चाहिए। हमें एक बार फिर जायजा लेना चाहिए कि बाप और माँ की मर्जी कहाँ है। ताउन करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे का ख्याल करें और आसमान की बादशाही के सफर में एक दूसरे की मदद करें। मैं आजिज़ाना इल्तमास करता हूं कि हमारे तमाम आसमानी खानदानी अराकीन इन सिफात को अमली जामा पहनाएं। क्या हम इब्रानियों बाब 3 पर एक नजर डालें? इब्रानियों बाब 3 आयत 18 से देखते हैं। इब्रानियों बाब 3 आयत 18 में यह लिखा है कि और किनकी बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। वो कहां दाखिल ना हो सके थे? जिस्मानी लिहाज से वो कनान में दाखिल ना हो सके थे। रूहानी लिहाज से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आसमान की बादशाह में दाखिल होने में नाकाम रहे थे। इसलिए मुकाशफा 14 बाब में उन लोगों के बारे में दर्ज किया गया है जो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये बगैर सोचे समझे पैरवी करना नहीं है। ये कहा जाता है कि दरख्त जानता है कि अपने किरदार से कैसे मुतमिन रहे। ये दरख्त होने पर हरगिज शिकायत नहीं करता। ये सवाल नहीं करता कि मुझे यहां क्यों लगाया गया है और वहां क्यों नहीं। लालच हिकमत को धुंधला देता है जो नाफरमानी, शिकायत और बुड़बुड़ाहट को ले जाता है। बिल आखिर ये हमें शुक्रगुजारी करना भुला देता है। एक दरख्त खुदा की तरफ से बख्शी गई जिंदगी के लिए इंतहाई शुक्रगुजार होता है। इसलिए ये नहीं बुड़बुड़ाता कि वहां की बजाय आपने मुझे यहां क्यों लगाया, आपने मुझे खूबसूरत फूल की बजाय दरख्त के तौर पर क्यों पैदा किया। यह कहा जाता है कि दरख्त ऐसी बातों की शिकायत हरगिज नहीं करता। क्या हमें अब से ऐसा नुक्ता नजर नहीं अपनाना चाहिए? जब हम बच्चे थे तो बच्चों की तरह बोलते थे। बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। जो कुछ हमने किया वो बचकाना था। फर्ज करें कि वालिदैन ने अपने बेटे और बेटे के लिए गुड़िया खरीदी, लेकिन फिर ताकतवर बच्चा लालच में पड़कर दोनों गुड़ियां रखने पर इसरार करता है। ऐसी जिद लालच से आती है। जब कोई ये कहे कि सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, तो हम कह सकते हैं कि उनके पास अब भी बचपन की बातें हैं। खुशखबरी के हर अमल में हम में से हर एक के लिए खुदा की तरफ से एक मुकर्ररा मुकाम है। चाहे वो हमें कहीं भी रखें, हमें खुदा के हर काम से गैर मुतमिन होने की जरूरत नहीं है। अगरचे ये इंसानों का काम लगता है, पर खुदा सब कुछ करते हैं। हमारी कलीसिया खुदा की क़यादत में है। इसलिए दरख्त की तरह हमें मुतमिन होना चाहिए और अपने मुकामों किरदार के लिए शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि ये शिकायत और सवाल करना चाहिए कि आपने मुझे यहां क्यों रखा है या आपने उन्हें वहां क्यों रखा है। हमें यकीन रखना चाहिए कि खुदा का हमें एक मखसूस मुकाम पर फायज करने का एक मकसद है और उस काम के लिए पूरे दिल से खुद को वक्फ करना चाहिए। तो फिर क्या सामरिया और ज़मीन के इंतहा तक एक लम्हे में खुशखबरी की मुनादी नहीं की जाएगी? इब्रानियों 3 बाब में उन लोगों का जिक्र किया गया है जो मुल्क कनान में दाखिल होने में नाकाम रहे थे, जो कि रूहानी लिहाज से आसमान की बादशाही है। यह लिखा है कि जिन्होंने नाफरमानी की थी वो दाखिल ना हो सके। ये वो है जो खुदा कसम खाकर कहते हैं, हता कि वो कसम खाते हैं कि ऐसे लोग हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए हमें जल्द बचकाना ईमान से बालिग ईमान की तरफ बढ़ना चाहिए।
कतई तौर पर हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, बिला नागा दुआ करनी चाहिए। और हमें और क्या करना चाहिए? हमें हर हाल में शुक्रगुजारी करनी चाहिए। सिर्फ तभी हम फरमाबरदारी की राह पर चल सकते हैं। ऐसा करते हुए हमें गौर करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द सही उनके खानदानी अराकीन किस चीज से बेचैनी महसूस करते हैं, उनकी मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो रूहानी लिहाज से कैसे तरक्की कर सकते हैं। हमें मुसलसल इन सवालात पर गौर करना और उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि यसू ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी भेड़ें चराओ। हमें अपने अजीज भाइयों और बहनों को रूहानी तौर पर चराना और उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए ताकि हम सब आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस खास काम को पूरा करने के काबिल होंगे। हम यशायाह की किताब बाब 14 पर एक नजर डालते हैं। यशायाह बाब 14 आयत 24 देखें। रब्बुल फाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा क्या होगा वैसा ही हो जाएगा, और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वकूअ में आएगा। ये लिखा है कि वैसा ही वकूअ में आएगा। ये किसकी मर्जी है? ये खुदा की मर्जी है। तो फिर खुदा का मंसूबा और इंतजाम क्या है? मत्ती बाब 28 में खुशखबरी कितनी दूर तक जाती है? खुदा कहते हैं कि इसकी मुनादी सब कौमों में की जाएगी। मत्ती बाब 24 में खुदा कहते हैं कि इसकी मुनादी सारी दुनिया में की जाएगी। क्या वो हमें रोमियो बाब 10 में यही कलाम नहीं बख्शते? ऐसा करने के लिए किसी को भी बच्चे के तौर पर नहीं रहना चाहिए। हमें बालिग ईमान की जरूरत है। चूंकि हम पहले बुलाए गए हैं, इसलिए हम रूहानी तौर पर बालिग बने ताकि हम नए अराकीन की खुदा की तरफ सही रहनुमाई कर सकें, जो अभी बच्चों की तरह हैं, यानी सही उनके खानदानी अराकीन जिन्होंने अभी सजाई को कबूल किया है। बाप और माँ की मर्जी की फरमाबरदारी बालिग ईमान की अलामत है, जबकि अपनी राह, अपने ख्यालों पर इसरार करना या अपनी जिद की पैरवी करना एक बच्चे की खुसूसियात है, चाहे उसका मुकाम कुछ भी हो। वो जिनका बचकाना ईमान है आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं। आज हम एक बार फिर खुदा की बख्शी गई इन तमाम तालीमात पर गौर करें। ये कहने की बजाय कि मेरी पैरवी करो, हम ये कहें कि जलाली बाप आंसांग होंग और जलाली आसमानी माँ की पैरवी करो। हम सबको उनकी पैरवी करनी चाहिए। मैं खुलूसे दिल से उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्यारे आसमानी खानदानी अराकीन यूं दूसरों की रहनुमाई करेंगे। इसी के साथ मैं आज का आवाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।